प्राइमर लगा लिया है. नाउ आई एम गोइंग टू कलर करेक्ट अ बिट, ऑल्दो आई डोंट डू color correct a lot of time. Although I don't do color correct a lot of time, but कभी कभी ना I do it. So for this I am using the NY Bay color corrector stick, and this is in the shade orange collect. Yes, you can't see any makeup on my face because in today's video I am going to tell you how you can do your base and आपका जो मेकअप है, जो स्किन है, वो बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा. बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल आस्किंग मी हाउ टू डू देयर फाउंडेशन, स्पेशली देयर फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन करने में उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है. दैट इज वाई आई थॉट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू दोज ऑफ यू who really struggle with the application of foundation. और अगर आपका फेस बहुत केकी लगता है और बहुत ही ड्राई चैप्ड लगता है, so this video might be helpful for you all. So yeah, now without any further ado, let's get started with the video. Also guys, it is so hot in Delhi, so I am sweating a little bit here and there, so please don't mind that. So let's get started with the video finally. सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं बताती हूँ सबको मेकअप करने से पहले, वो है कि आपको अपनी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करनी है. मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत जरूरी है. यहाँ मैंने अपना फेस पहले ही वॉश कर लिया है एंड आई हैव ऑल्सो अप्लाइड अ टोनर. And now I will apply a cream. Actually I have already applied a cream. तो सबसे पहले आपको अपने स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है. Like you have to wash your face, apply a toner, and आपको एक क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है before doing your makeup, so as to avoid that cakiness. तो उस cakiness को आप उस तरीके से avoid कर सकते हो. I have already applied moisturizer, so I'm not going to reapply it. Also अगर आप बाहर जा रहे हो, so make sure to apply a sunscreen lotion. That's very very important. And the next step will be your primer. So I have couple of primers for you all, so let's go into that one by one. So the very first primer which you can apply is the Insight Cosmetics one. So this is a silicone primer. This has a very silicone texture, so this is very good for someone who is having a lot of pore issues. तो आप इसको लगा सकते हो स्पेशली इधर, एंड ये जो है आपका फेस बहुत ही स्मूथ बना देता है. एंड दिस लुक्स अमेजिंग ऑन someone who is having a lot of texture. So this really help in priming and smoothing out your face. Now the next primer is the ELF Putty Primer, and this is for making your skin poreless. As you can see, इसका जो texture है वो बहुत balmy texture है. So this is going to again smoothen out your skin. And now if you have dry skin, you don't have a lot of texture, आपको बस dewiness चाहिए, so make sure to apply this one. This is the illuminating primer by Sugar Cosmetics. So again, this is again very very good, and this just makes your skin looks very soft, plump and juicy. So today I'm going to apply the poreless putty primer. That's how it looks like, and when you open this now, you have this beautiful texture. And let me show you the texture. That's how this looks like. It has balmy texture. It looks again so beautiful. And now what I'm going to do is I'm just going to apply here. And by the way, this also you know, if you have texture on your face, तो उसको भी ये बहुत हद तक अच्छा कर देगा. एंड आपको ना ये करना है बहुत टाइम लगा के, ठीक है. ये देखो. So when you apply this primer, this just makes your skin very very smooth. And जो भी problem है आपके skin पे, this just make sure that your problematic area वो बहुत ही अच्छे से cover हो जाए. So I like this because this also gives an illumination. If you can see, it is giving an illumination as well. So इसी वजह से मुझे ये ज़्यादा पसंद है. And sugar वाला भी is very good, but then अगर आपका texture है, so you need to use something which is going to fill your pores and smoothen out your face. So and जो ELF वाला primer है, that's the perfect example of the same. For color correcting my skin, I'm going to use the NY Bay color corrector, and this is in the shade orange corrector. This is again cheap and काफ़ी अच्छा है. And इसका जो orange
है ना, that is also very good. This just cancels out any type of darkness you have. So I'm just going to apply it on the designated areas. Do not go directly from the stick. What you should do is just apply it on your fingers and हल्का हल्का जहाँ आपको चाहिए वहाँ आप लगाओ. And I can see that I have a little bit of pigmentation around my mouth, so that's where I like to color correct these days. Otherwise my foundation will turn gray. So I like to color correct here. If you want, you can also color correct a little bit near your under eye area, because we all have a little bit darkness going on over there. And I'm using fingers. इससे बहुत ही अच्छे से जो आपका product है वो distribute हो जाएगा. And also this is just going to help you blending the product, or as well blending the product. Right now I'm looking very funny, but then this will come together. Trust the process. After this I'm going to use a foundation. Please use a weightless foundation जो कि कम heavy हो. For this I'm going to use the Color Bar weightless foundation. And by the way guys, I am in the shade FW64. And this is a really good foundation. I don't like foundations. बहुत जल्दी मुझे foundation पसंद नहीं आते हैं. But ये वाला जो है ये बहुत ही अच्छा है. And मैं बस 1 pump लूँगी. एंड लिटरली दिस फाउंडेशन इज वेरी नाइस. ये फाउंडेशन मुझे के ब्यूटी के फाउंडेशन से ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये ना मुझे एक बहुत ही अच्छी सी कवरेज देता है, वो आप अभी देखोगे. सो आई जनरली लाइक टू डॉट इट आउट लाइक दिस. ठीक है, बैक ऑफ माई हैंड पे लेके एंड आई लाइक टू डॉट इट आउट. तो इससे ना काफी अच्छे से प्रोडक्ट जो है वो स्प्रेड हो जाता है एंड आपको बहुत ज्यादा लगाने की भी जरूरत नहीं है. And this shade is also a very good match, and this foundation doesn't oxidize, although I have done full-fledged review. So I like to do this. इससे काफ़ी अच्छे से मेरा जो foundation है वो अप्लाई हो जाता है. And now because summers हैं तो मैं brush कम यूज़ करती हूँ. I like to use a beauty blender. Always wet the beauty blender, और उसका जो excess water है ना उसको please आप निकाल लो, तभी जाके आपका blender जो है आपको एक बहुत अच्छी और seamless coverage देगा. So I'm going to just blend it, and we have to push this. Okay, we just have to push this out. ब्यूटी ब्लेंडर से आपको एक बहुत ही फ्लॉलेस सी नेचुरल सी कवरेज मिलती है, जो कि ब्रश आपको नहीं दे पाएगा अगर आप सिर्फ ब्रश से इसको ब्लेंड करोगे तो. एंड बिकॉज मैंने हाई नेक पहना हुआ है तो मैं यहाँ पे ज्यादा फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी. यू सी इट जस्ट ब्लेंड्स इनटू माय स्किन लाइक अ ड्रीम. एंड मैंने ये वाला एरिया छोड़ दिया है क्योंकि मैं इस पे डायरेक्ट कंसीलर लगाऊंगी. अदरवाइज अगर आप फाउंडेशन भी लगाओगे जहां आपने कलर करेक्टर लगाया था तो उससे क्या होगा, आपका फेस जो है और केकी लगेगा. सो ये प्लीज आप ध्यान रखना. और फाउंडेशन प्लीज बहुत एक लाइट वेट फाउंडेशन लेना. लाइक ये वाला जो मैंने लिया है काफी लाइट वेट है ये. एंड कैन यू सी माई फेस जस्ट लुक सो सिमेट्रिकल. लाइक कहीं भी आपको डार्कनेस नहीं दिखेगी. यहाँ पे भी मैंने अच्छे से बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है इसको. Now I'm going to use a concealer, and for concealer today I'm going to use the L'Oreal Infallible Full Wear Concealer. And again ये ना बिल्कुल फुल कवरेज कंसीलर है. सो बहुत ही थोड़ा सा लूंगी मैं, सिर्फ इतना एंड इतना, दैट्स इट. लिटिल बिट ऑन माई नोज, ज्यादा नहीं लेना है. हियर एंड हियर. थोड़ा चाहो तो आप यहाँ ले सकते हो. That's it. And again I'm going to use the blender only, क्योंकि इससे बहुत ही कवरेज जो है, जो फाउंडेशन या कंसीलर का है कवरेज बहुत सीमलेस लगता है. By the way, this beauty sponge is by Blue Heaven. बहुत ही अच्छा एक ब्यूटी स्पॉन्ज है. यू डोंट हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी जो ज्यादा एक्सपेंसिव वालों पे. सो ये काफी अच्छा है एंड इससे आप अपना फाउंडेशन भी बहुत ही इजीली ब्लेंड कर सकते हो.
मैं थोड़ा सा कंसीलर आईज के ऊपर भी लगा लेती हूँ, क्योंकि आईज के ऊपर भी वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ पिगमेंटेशन। इससे क्या होता है, वो पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छे से छुप जाती है। तो अब जितना कम प्रोडक्ट लोगे उतने अच्छे से आपका जो मेकअप होगा वो बैठेगा। सो नाउ डू यू सी माई फेस डजंट लुक केकी एट ऑल, एंड कोई ऐशी नहीं लग रहा है मेरा फेस। एक बहुत ही अच्छा सा कवरेज मिल गया है मुझे, एंड जो मैंने कंसीलर लगाया था वो भी अच्छे से ब्लेंड हो गया है। नाउ इज द टाइम यू हैव टू अप्लाई द पाउडर। सो फॉर पाउडर आई एम गोइंग टू यूज द ट्रांसलूसेंट पाउडर बाई एल्फ। आप फेस पाउडर भी यूज कर सकते हो, बट आई लाइक टू यूज ट्रांसलूसेंट पाउडर, क्योंकि एक तो बहुत ही लाइट वेट होता है एंड अच्छे से जहां जहां आपको चाहिए आप अच्छे से सेट कर सकते हो। आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस अंडरनीथ माई आईज। जहां मैंने कंसीलर लगाया था उसको सेट करना बहुत जरूरी है, एंड प्लीज अवॉइड ओवर अप्लाइंग ऑफ पाउडर्स और ट्रांसलूसेंट पाउडर या फिर फेस पाउडर, क्योंकि अगर ओवर अप्लाई करोगे तो अगेन आपका जो फेस है दैट विल बिकम वेरी वेरी केकी। नाउ द सेम थिंग यू कैन डू विद योर कॉम्पैक्ट पाउडर इफ यू डोंट हैव अ ट्रांसलूसेंट पाउडर, या फिर अगर आपके पास बनाना पाउडर नहीं है तो यू कैन डू दिस विद अ कॉम्पैक्ट ऑल्सो। सो बस, एंड लिटिल बिट मैं इधर सेट कर लूंगी बिकॉज आई एम बहुत ज्यादा स्वेटी इधर से। That's it. And if you like, you can apply the powder to your whole face, but I'm not going to do that. अगर आप कर लोगे तो वो अच्छा होगा। अगर ड्राई, एंड इफ यू हैव अ ड्राई स्किन यू कैन अप्लाई द पाउडर ओनली अंडर योर आईज एंड अराउंड योर माउथ। माउथ के अराउंड लगाना जरूरी है, अदरवाइज यू विल क्रीज फ्रॉम योर, सो दैट वुड लुक वेरी वेरी बैड। सो या, सो इतना करने के बाद नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ब्रॉन्जर। This is the bronzer which I'm going to use. This is by Elf Cosmetics. Now if you can see, इसका जो undertone है that is neither cool and neither very very warm. तो ये बहुत ही अच्छा एक bronzer है मेरे skin tone के लिए. By the way, this is in the shade Nuanced. So काफी अच्छा है। तो मैं एक fluffy सा brush ले रही हूँ, इस पे लगा के I generally tap off the excess, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। And that is the reason I just like to tap it off and then blend your bronzer upwards. This is such a good bronzer, guys. Recently I tried the that sugar palette जिसका मैंने रिव्यू भी बनाया था। I really didn't like the bronzer, क्योंकि वो जो bronzer था that did not blend very well into my skin. But you see, a good bronzer is that bronzer जो कि आपकी skin पे बहुत ही प्यारा से blend हो जाए। And that is what this bronzer is doing to my face. It's just blending into my face like butter. So doesn't matter आपकी कितनी भी dry skin हो या कितना भी आपका oily skin हो, this bronzer is going to suit everybody. और पता है क्या, I just use this as my blush as well कभी कभी जब मेरा मन नहीं करता, and I just apply the bronzer little bit here onto my nose. Fine. Now after this you have to apply blush. So अगर आपका बेस बहुत अच्छे से हो जाता है ना, तो चीज़ें बहुत अच्छे से आपके फेस पे ग्लाइड होती हैं, and that's what is happening here. So now for blush also, make sure to use a blush which is not completely matte. I know sometimes you get very overwhelmed कि कौन सा ब्लश यूज करें, तो सबसे पहला मैं ऑप्शन आपको ये डेबोरा मिलानो का ब्लश का दूंगी। दिस इज इन द शेड 04 स्पाइसी, एंड जो दूसरा है वो है ये कलर बार का। तो इसमें बहुत अच्छे से शीन है, लुक सो प्रिटी ना, लाइक गर्मियों में अगर आप इसको लगाओगे लुक सो प्रिटी। बट आज मैं डेबोरा वाला लगाऊंगी, एंड अगेन दिस ब्लश इज वेरी वेरी गुड फॉर रेगुलर यूज, बिकॉज अगर आप देखोगे it does not have a lot of color, but it does make your face look very very glowy and sculpted. I just love applying blush, इसलिए मैं खो जाती हूँ ब्लश लगाते लगाते।
नाउ कम्स द हाइलाइटर. नाउ इट्स योर चॉइस, क्योंकि गर्मियों में मैं हाइलाइटर थोड़ा अवॉइड करती हूँ. बट इफ आई गो फॉर एनी हाइलाइटर, आई लव यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, एंड आई यूज दिस विद अ फैन ब्रश. क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत ही सही अमाउंट पे आपका जो ये जो आई एम स्पीचलेस राइट नाउ. सो उससे क्या होता है, आपके जो ये हाइलाइटर है ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन पे लगती है, एंड आप ओवरबोर्ड नहीं जाते हो हाइलाइटर से. लिटिल बिट हियर, एंड आई नो आई लुक वेरी फनी क्योंकि मेरे आईब्रोज नहीं बने हुए हैं. सॉरी फॉर दैट, प्लीज एक्सक्यूज मी. सो ऑलमोस्ट वी आर डन. लास्ट स्टेप जो है वो है ये मेकअप सेटिंग स्प्रे का, जो कि मैं लगाऊंगी. एंड दिस इज अ लिटिल बिट हाइड्रेटिंग वन. या तो ये भी लगाना बहुत जरूरी है आपके मेकअप को लॉक करने के लिए. समझे, गोइंग टू अप्लाई दिस. एंड अगेन आपको अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डैब द ब्लेंडर. तो इससे क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ना आपके फेस पे, वो सारा अब्सॉर्ब हो जाएगा. एंड आई शुड हैव क्लोज माई माउथ, क्योंकि दीज स्प्रेज ना ये आपके मुंह के अंदर चले जाते हैं. या सो यू सी माई बेस, इट जस्ट लुक्स फ्लॉलेस. लाइक ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने बहुत कुछ लगाया है, बट स्टिल आई लुक सो फ्रेश. एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मेकअप रूटीन. एंड मैं आपको पूरा फेस ऑफ मेकअप करके लास्टली मैं आपको बताती हूँ कुछ और चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. सो आई बी बैक. Alright guys, so this is how my makeup looks like, and as you can tell it looks so fresh, so simple, as well as it doesn't look that I have applied a lot of makeup. And if you can see from close, you can tell that my face looks very fresh, by the way. Although I have used a full coverage foundation, this is by the way a full coverage foundation, but it is so nice, and just gives this illuminating effect on my face. I am totally in love with this makeup look. I hope you enjoyed, you learned something, and if you want to add anything, आप comment section में लिख सकते हो मुझे. if I have to add anything, कोई और टिप आप देना चाहते हो, सबको, you are most welcome. फाइन. सो आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. तो ये एक बिगिनर फ्रेंडली सीरीज है, जहाँ पे मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी. तो यहाँ मैंने आपको बेस बताया है. आई विल ऑल्सो डू अ सिमिलर टाइप, जहाँ पे मैं आपको आई शेडो एंड रेस्ट ऑफ द फेस करना बताऊंगी. एंड या दैट्स अबाउट इट. एंड आई रियली होप दैट you guys like this video. Let me know what you guys think about this, and I will see you guys in my next video. Till then, you guys take care. Love you guys a lot. Bye.